So good evening and good morning, everyone. Yeah. Yeah. Good morning. Yeah, you are so lucky you're in between both. Yeah. It's good. Opposite is good because everybody can join that. But sometimes with different zone is hard. Yeah. So is there any change in the life? Prayer? Today, today I didn't have any experience to share really. I don't know. Maybe I have it, but I don't know what to say. But prayer Yeah. can be done anytime. Yeah. Yesterday we discussed prayer, na? वो तो Yeah. कभी, Yeah. yeah, anytime you can do. As you say, prayer is the initial part of the manifestation, right? Yeah, yeah, yeah. It's a part of that. So, It's inbuilt in the yeah, manifestation prayer. yeah. So, नहीं उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हुआ है प्रेयर का मीनिंग ही चेंज हो गया अभी जनरली पीपल mm. डोंट अंडरस्टैंड प्रेयर मीन्स व्हाट इट इज हो जाके भगवान मुझे ये दे देना मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा वो करूंगा That's what it is. मांगना पड़ता है. मानना Mm. But being a nurse, I used to think prayer as a blessing, recovering or blessing for my sick patient. या That's what I used to look at it. इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज Mm. पहले हम लोगों को पेरेंट्स से बोलते कभी हम कहते हैं ना मैं जा रहा हूँ Yeah. बोलते नहीं बोलो मैं जाके आता हूँ Mm. Yeah. they used to say no you go and come back that is what you have to say Yeah. I'll go and come back. They never say like Yeah. just say I'm going. Just say I go Yeah. and come back. तो Mm. ऑलरेडी वो मैनी प्रेयर ही करते थे वहां पे. Yeah. And in fact, you'll be surprised if you really translate all our Indian mantras, Uh-huh. they are written in the same way. Because we don't know the meaning of, like we can't translate Sanskrit is so easily, like not many people knows. Mm. But otherwise, if you translate, so they say the same thing. Yeah. They always talk in either a past or a present. Mm. Yeah, but no, that's true. But see, since you explained to us this part, this present, this and this, we analyze and connect the dots properly. But Yeah, with the parents, we'll say, do it. So we don't know why. Just do it. Do it doesn't get you to, yeah. And accept it quickly. yes, and you will be surprised to know this fact. The mantra was given to our Rishi Muni. Mm-hmm. बहुत पहले जब उनको मंत्र दिया गया था ना तो उनका एक वाइब्रेशन था मंत्र पास Yeah. करने का लाइक व्हेन Mm-hmm. यू से ओम देन हमिंग शुड कम हियर ऑन योर Yeah. फोरहेड लेकिन हम लोग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मतलब ऐसे बोलते हैं जैसे लाइक लाइक वी आर Faster time. Yeah, faster train going. Yeah. हाँ तो वही ना तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है इट डजंट हैव एनी मीनिंग एक्सेप्ट द वर्ड तो देर इज अ वाइब्रेशन इन द टेक्स्ट आल्सो and there is a vibration in the sound also. So mantra means you get the benefit of the text as well as the sound. What happens if you read the text silently in the mind? Not Text read also it. has a vibration. The That's combination what. of a text is also having a vibration in it. Like if you remember हम बोलते थे ना रामायण को पास में रखो Mm. एंड गीता को पास में रखो बुक को कोई आपके रहना चाहिए वहां पे सेल्फ में या जहां भी आप रहते हो so text is also having the combined text is also having vibration. Oh, I Like Om is having his own vibration. Even symbol says his own vibration. तो ये text form में भी there is a vibration. Any form of representation of the message, or whether it's through sound, whether it's through the written thing or some other technique. So there is a benefit. But doing a meditation, you have to be like a mantra when you can do mantra while walking, talking, walking, doing exercise. But with the meditation, you have to sit in one place.
No, meditation can be done even when you are working. Mm, Like I am in a 20, now I am talking to you. If you mm, do whatever you love to do, you are mm, in a meditation. mm. Whatever project I do, I totally get into like a meditation. Yes. Totally, I travel with that project, whatever the project. Example, I was doing a project one time of Carnatic music. I had no idea about music, what to say, how to do, and all that. I was doing a research, and while doing that research, I was traveling all over the place, and I felt that sensation. Yes. See, meditation is nothing. You are able to focus on something, or Mhm. you are able to focus. You are able to say connect with your creative skills, the Yeah, skills which is above your physical mind. yeah, So if you are doing whatever you love to do, enjoy, or what is your excitement, you when you work on your excitement, when you work on your passion, when you mm, work on creative skills, when you do some research unknown, because your mind doesn't know, right? There is no yeah, role of physical mind. So when there is mm, no role of physical mind, you can consider it as a meditation. Like mm, you're involved in making some dishes, whatever, or you love to do it. There are two things. yeah, One is somebody asks you to do it and you don't want to do it, then it's not a meditation. But if you love, somebody is asking you or not asking you, but you love to do it, you are doing it, you're mm. totally grows in the thing. पूरा खो गए हो आप. Yes, yes, yeah, I do that. Yeah, totally, I get involved. Totally. Yes, so that More is than, also more than. meditation. Yes. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है मेडिटेशन के. I always say like I'm in a 24 hours meditative meditation. Why? Because I always do what I love to do. Yeah, मैं वो सारी चीज अवॉइड करता हूँ जो मुझे पसंद नहीं है. सो आई एम इन अ mm, मेडिटेशन. एंड यू yeah, नो, इफ यू रियली you are in a joy mood always, yeah, yeah, surprise your vibration is 2 legs yeah, around. yeah. And if you are doing a meditation, the people who are doing a regular meditation closing their eyes, sometimes they are not even able to cross 60 or 70K also. Mm, So that is what the power of working on your excitement creative, because you are in a meditative and you forget the time. And the yeah, part of it, yeah, for example, you are watching something or you are doing something. Maybe you spend a lot of hours and you feel, oh, I thought it's just 5 minutes. Then you'll be surprised only 5 minutes is counted in your aging. The remaining all, whether it's a 3 hours, 4 hours, all are not considered in your aging, because you are in connecting with your soul. So whenever you are connected with the soul, you are not aging. So that's the beauty of this. So if you want to stay young forever, do whatever you love to do full time. Make business what you love to do. Don't do something like, oh no, somebody is forcing me or somebody is asking me to do it. Then you are out of meditation. फिर आपका एजिंग चलता है, फिजिकल बॉडी से पूरा एनर्जी आपका आ रहा है. And you know the best part is, people are surprised when they see me, like, continuously the same energy is there throughout the day. So they are surprised, like you are doing so one after one this, but still the energy is same. Yeah, because I am in a meditation state. I'm working on my excitement, what I love to do, like, guiding somebody or talking to someone, helping someone, or giving the wisdom. So that is my passion. So when it's my passion, I'm doing the same thing. I'm connected with my soul. I'm connected with soul. Then energy is not coming from my physical body. It's coming from the soul. And I'm also not aging then. So you can stay wherever you are. Very soon, I think you will hear this kind of thing, reverse aging, those things. Now, a lot of people are doing a research also on DNA upgrade, how we can do the reverse aging and other thing. Those things are going on. Research is going on. But this is also one of the very solid technique
which you can use it in your life. See, when we sleep in the night, we get some power, so we can carry out our daily task. Every night, our body gets repaired, so our soul work on the repairing part. And in between, is same as like how you do the therapy in a medical science, right? When you are doing something, you put some TV in front of them, so they are busy there, and you are doing your thing like drip. If you are like, give someone that one, or some say like, some procedure is going on, so you switch on the TV. So similar way they switch on the dreams in the night. So you are busy there, and in the background they are doing all the repairing, your DNA repairing, your body repairing, your simulation repairing, whatever you see. So they are repairing everything in the night. So morning when you ready, you see everything proper. This is all simulation what we see. It's not real. That's why it's required to refresh the things. It's required to, uh, every night whenever you sleep, our soul has to repair the whatever you see around in a physical reality. So physical reality looks real, but it's not a real. You feel like something is very solid in a physical reality, but in reality, it's not a solid. There are a lot of experiment done, like we never touch any article, even object. You think I'm lifting something, so you'll be surprised to see we are not even scientists. They already discovered we are not touching any object, even your say mobile screen we are not touching, but we have the sensation of touching because our electromagnetic or the screen electromagnetic and the other object. So that is another science that scientists are working on that, but they have proved we are not touching any object, and spiritually also it's not possible. Okay, so who else joined? Okay. I'm here. Hi. Hello. Hello. I barely finished my work. So we finished it. You made the meditation earlier so that you could get more people, but I don't know if it's making any difference. Yeah, yeah, yeah. To see, sometimes what happens, if you feel I'm busy, if you feel my morning is busy, I cannot do other than the regular task, or evening is busy, I am full packed, already you have those belief, then those will be executed in the life. So if someone has to join the meditation, they need to have a belief like, okay, I always have time for meditation. Then whatever time you schedule, they will be able to join. Okay, so today's what should be our thing? Let's see what it is there. Just close your eyes. पहले आप आराम से बैठ जाइए कंफर्टेबली, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए एंड मेक दिस मुद्रा. अपन ये गन गन जो वाला मुद्रा होता है ना, फायर करते हैं जनरली ये. तो दिस इज अ वेरी पावरफुल मुद्रा. सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो आपका थंब है, आप इसका मतलब होता है कि आप ऊपर से कनेक्ट हो रहे हैं. सो इफ यू सी इन whenever some maybe a famous personality, they will make this mudra.
So there is a continuously flow of idea from your soul from the top, and it will impress the audience. So this mudra is very powerful. When you give any seminar and thing, you get the answers and everything very quickly. So this is the mudra. You will see many people are sitting like this when they talk. So any famous personality, if you see their interviews, you will see this mudra there. So sit in this mudra, take 3 deep breaths. So let's explore today journey to unknown, leap of faith. We don't know what is going to happen next. It's unknown. Whenever we start any project, we don't know where it's going to end up, what we are going to get. So we always have a curiosity to know the unknown. Even मेरा भी curiosity था to know the unknown. स्पिरिचुअल जर्नी खुद एक अननोन जर्नी है फॉर ए फिजिकल माइंड. फिजिकल माइंड को ट्रेन किया जाता है व्हेन यू आर ए स्मॉल किड. How the system work, how the people work, what is the environment, how is the thing, how you should behave socially, how you should talk to the other people. बहुत सारे एथिक्स हमें सिखाए जाते हैं. Because these all are known. These are all known to the society and other things. So our physical mind is more comfortable in dealing with the known things. Like you switch on the TV, then what happens? So if TV is switched on, you are comfortable. You know, okay, this is how it's going to work. But if when you switch on the TV, nothing comes, that is something unknown to you. And that is where you have the fear. Oh, what happened? And that is where you started working on that, exploring the thing. To explore the unknown. But somehow we have the fear. And you know, fear is not our energy. मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ. फियर डर मेरी एनर्जी नहीं है. तो लाइफ में जहां भी डर को मैंने जीवन में लाया है किसी भी सिचुएशन में, वो मेरा मिसअलाइनमेंट है. और मेरा यही एक्शन मीन्स कर्मा है टू अलाइन बैक टू अनकंडीशनल लव. बिकॉज आई एम लव. माई ट्रू सेल्फ, ट्रू एसेंस इज लव. Fear has no power unless you power it with your love. तो फियर का कोई एनर्जी नहीं है. फियर इज जस्ट लाइक अ मोबाइल विच इज नॉट चार्ज. So until unless you don't charge it, it won't work. But by default, you are love. So whenever you have unknown thing for your physical mind, generally you have the fear. Oh, what will happen next? Am I going to do it or not? Is it going to happen or not?
I don't know. First time I am trying. So you might have fear whenever you have unknown things in front of you. Like somebody say, there is a box, put your hand inside and see. So you don't know what is there inside, then you have the fear. Similar way, whatever we see in the world, physical world, these are the known things. Whatever a physical mind knows is comfortable. Physical mind is comfortable. So basically, we should be comfortable for unknown thing also. If you don't know, and if you try to explore in that area, then you get new things, new learning. You expand your physical mind, you expand your consciousness. तो जितना आप अननोन के ऊपर काम करेंगे उतना ही आपका कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगा. तो आपको कितना विस्तार करना है आपकी चेतना में. So you should love to explore things. If you explore the known, there is no fun. But you explore the unknown, then you have a story to tell to the people. Leap of faith. Have you heard about this? Many times we do this in our life. And after we complete that, we are excited. जैसे कोई भी अननोन को आप एक विश्वास करके आगे बढ़ जाते हैं कि यस लेट्स एक्सप्लोर, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है. सो विल डू इट थ्रू मेडिटेशन. विल रिमूव सम ऑफ द फियर्स. नाउ इमेजिन देयर आर टू रॉक्स. उनके बीच 1 फीट का डिस्टेंस है. नाउ यू हैव टू जंप. इमेजिन टू रॉक्स and you have to jump from one rock to other rock. Just visualize you are standing on one rock and you are jumping on the other rock. So distance is just 1 feet. You can easily jump because your physical mind knows that you can do it. Now imagine it's a 3 feet. Now ask yourself, are you ready to jump? क्या आप 3 फीट की डिस्टेंस वाली रोक पे जंप कर सकते हो, एक रोक से दूसरी रोक पे? एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर क्या आप जंप कर सकते हैं? इफ यू कैन जस्ट जंप. तो यहाँ पर लीप ऑफ फेथ है कि यस शायद मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड यू जस्ट जंप एंड से यस आई डिड इट. नाउ कीप मूविंग बोथ द रॉक्स. नाउ इट्स 5 फीट.
You have some fear. I may or may not be able to jump. You don't know what is going to happen. Some unknown things is there. I may reach there or I may not reach there. Later you can tell me what was your decision, what your physical mind is saying to you. Now imagine one rope is going up, is moving in upward direction. Distance is now increased. It's not a straight distance, but because the one rope is at height, you are standing on the rope जो थोड़ा ऊपर है, दूसरा rope नीचे है. Now see whether you can jump there or not. Otherwise just do it, jump. एक बार jump कीजिए. And you see yourself you are landing on the other rope safely. So what you did here, leap of faith. आपने विश्वास किया, जंप किया और आप लैंड भी हो गए. स्पिरिचुअल जर्नी भी ऐसी होती है. जर्नी टू अननोन. यू डोंट नो आप कहाँ पर एंड अप होंगे, मेरी चढ़ाई कब ओपन होगी, मेरे को कुछ एक्सपीरियंस आएंगे या नहीं आएंगे, मेरी एनर्जी कब इंक्रीज होगी, मेरी वाइब्रेशन कब इंक्रीज होगी, वेदर मेरे को विजडम मिलेगी नहीं, क्या मैं टेलीपैथी से कम्युनिकेशन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, क्या मैं अपने राइट ब्रेन से कनेक्ट कर पाऊंगी या नहीं, क्या मेरी कोई साइकिक पावर है या नहीं, मेरी क्रिएटिव स्किल्स क्या है, मेरा पैशन क्या है. इनमें से काफ़ी चीज़ें हमारे लिए अननोन होती हैं. एंड इफ यू डोंट हैव फियर ऑफ unknown, exploring unknown, then you can easily move on in this journey. तो लाइफ में कभी ना कभी हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना ही होता है. बट इन रियलिटी योर सोल ऑलरेडी नोज. आई एम टेलिंग यू द सीक्रेट. आपकी सोल को ऑलरेडी पता होता है कि जो आप करने जा रहे हो, जो अननोन है, उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हो, तो आपकी सोल ऑलरेडी वहां पर आपके लिए सरप्राइज रखती है. होता वही है जो आपकी सोल ने डिसाइड किया होता है. Your soul has already decided कि if you move one step forward, what is going to happen. So you have to trust your soul and move forward and explore the unknown. आप कीजिए, your soul has lot of surprises for you. I'm telling it from my personal experience. Poonamji and myself, we see the past life of people. Our physical mind doesn't know, but we trust our soul, we trust their soul, and we see the unknown appearing in front of us. So what we do here, we explore the unknown.
We just know your name. We just know your face. ये सबसे बड़ा बोलते हैं ना लीप ऑफ फेथ है कि आप सोल के ऊपर इतना ट्रस्ट करने लग जाते हो, इतना इंट्यूशन आपका स्ट्रांग होने लगता है, इतनी आपकी साइकिक पावर उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगती है, इतना सब कुछ होने लगता है आपके लाइफ में। फिर आपको जब विजुअल्स दिखने लगते हैं, अगेन इज अननोन टू यू, आपको ड्रीम दिखने लगते हैं, आपको सिंबल्स दिखने लगते हैं, आपको टोटली स्ट्रेंज चीजें दिखने लगती है, आप एस्ट्रल ट्रेवल करने लगते हो, लूसिड ड्रीम्स आप करने लगते हो। अगेन यू हैव समथिंग अननोन, you can't make out anything from that. Again you start trusting it. आप बोलते हो yes I know the answer, then you have the answer. तो love to explore the unknown. More you explore, more your soul will help you to know the unknown things. And believe me, your soul is more than happy to help you here. आपकी सोल इतनी खुश होती है जब भी आप वो सब करने के लिए आगे बढ़ते हैं जो आपके फिजिकल माइंड की सोच से परे हैं। हु इज कंट्रोलिंग योर रियलिटी? आपकी रियलिटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी सोल। बट वेन एवर यू टेक लीप ऑफ फेथ, जब भी आप इस तरह का बड़ा जंप लेते हो विश्वास करके, इंश्योर कि यू स्टे इन सेल्फ लव। सेल्फ लव में आपको हमेशा रहना है। सेल्फ लव में रह के आपको सोल से जस्ट रिक्वेस्ट करना है, यस आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द अननोन, आई नो यू आर देयर टू हेल्प मी, सो आई एम जस्ट ट्रस्टिंग यू एंड टेकिंग द स्टेप। कोई नया प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना है, जस्ट टेल योर सोल प्लीज गाइड मी, आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम, विद हाउ द पीपल विल रेस्पॉन्ड टू इट। बस आगे बढ़ जाइए। टेल योर सोल, वी से लाइक टेक द रिस्क, सो इनिशियली यू कैन टेक द कैलकुलेटेड रिस्क, और जब आप रिस्क लेने लगेंगे देन योर कॉन्फिडेंस विल बी very high there. Then you can even take more risk there. So if you have the tendency, अगर आपकी टेंडेंसी ये रहती है और आपकी पर्सनालिटी या हैबिट्स ऐसी होती है कि आपको अननोन को एक्सप्लोर करने में मजा आता है, then you can do the wonders on the earth. And remember, your last day is fixed. How you are going to leave this physical world, that is also fixed already. So not even 1 minute before or 1 minute after, you cannot leave this physical world. You can't. और अगर वो टाइम आ गया है तो वैसे भी कोई भी चीज़ वहां पर काम नहीं करेगी, पर अगर नहीं आया तो इसके अगेंस्ट भी कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। सो हैव दैट ट्रस्ट ऑन योर सोल, एक्सप्लोर द अननोन, उस फियर को हटाओ। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज नॉट टू टेक द स्टेप फर्स्ट, पहले उस फियर को हटाना है हमें। एंड व्हेन यू रिमूव द फियर, then your soul will guide you the next step. So tell your soul today in this meditation, I know you are there with me. मैं जानता हूं आप पूरे टाइम हर चीज कंट्रोल कर रहे हो।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, प्लीज रिमूव द फियर, वो डर को हटा दो। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर, एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस। मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करके अपनी चेतना का और विस्तार करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग विच आई नेवर डन बिफोर। प्लीज शो मी द वे। एंड बिलीव मी, अगर आपको कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना है, योर सोल विल गाइड यू ऑल्सो। सो यू जस्ट लाइक अ बेबी फॉर योर सोल। Your soul will take care of you. So today, remove all the fear of unknown. Take baby steps. Boost your confidence. Take whatever you love to do. So you have a story to tell to people. So the whole purpose of this meditation today is to let you know about the when you take steps towards any unknown thing, your soul is always with you, and your soul also give you the guidance. Soul also gives you all the help every step wherever you need it. You're not alone. So remove the fear, move forward. You are more than what you think when you think you are a physical body, but you are beyond that. So start taking a baby steps towards unknown. और अपनी चेतना का विस्तार आप तभी कर सकते हो जब अननोन की तरफ आप बढ़ते हो। बिकॉज फिजिकल रियलिटी रियल है पर रियल नहीं है, और जो रियल है वो पूरा अननोन है अभी आपके लिए। तो जब तक आप अननोन का फियर नहीं हटाएंगे अपनी सोल की तरफ, अपनी रियल ट्रू एसेंस की तरफ, आपकी प्रोग्रेस आपके फिजिकल माइंड के फियर के अकॉर्डिंगली स्लो होती जाएगी। सो लव व्हाट यू लव टू डू, वर्क ऑन योर एक्साइटमेंट, वर्क ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सप्लोर सम फील्ड विच नो वन हैज टच इट। किसी ने टच ही नहीं किया ऐसे फील्ड के ऊपर काम कीजिए। आपको वो करने में अच्छा भी लगेगा। योर सोल इज विद यू, एंड यू हैव स्टोरी टू टेल टू द पीपल लेटर। सी, किसी को इसके बारे में पता नहीं था, मैंने उसके ऊपर काम किया, एंड सी दिस इज व्हाट आई डिस्कवर्ड, एंड यू विल बी हर्ड। लोग आपको सुनेंगे क्योंकि ये उनके लिए भी अननोन है। सो यू हैव मोर वैल्यूएबल, यू अर्न मोर रेस्पेक्ट हियर। इसलिए हर कोई इंसान इतना आगे नहीं बढ़ पाता है, बिकॉज वो वही करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं। प्रॉमिस योरसेल्फ, खुद को प्रॉमिस करो। प्रॉमिस योरसेल्फ यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम अननोन इन योर लाइफ एंड गेट रिड ऑफ दैट फियर। नाउ tell your higher self, please guide me which area of my unknown, which unknown area of my life I need to explore next. Please guide me. I want to try it out. मुझे वो एरिया अननोन जो मेरे लाइफ में
मुझे गाइड कीजिए, मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, so that I am comfortable in moving towards higher consciousness, ताकि मैं कंफर्टेबल हो पाऊँ अपनी और हायर सेल्फ या हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए, and I can find the treasure of wisdom, treasure of power, psychic powers. Thank you, my dear lovely soul, for helping me out on this. When you are done, just bring your awareness to your physical world. अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा मूव कीजिए, रब योर हैंड, और अपने दोनों हाथ को अपने आइज के ऊपर कवर कीजिए, एंड एक्सेप्ट दिस चैलेंज, बट टेक कैलकुलेटेड रिस्क। आपको पता है, कई बार आपको फियर को हटाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको उसको रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करना है, आप उसको विजुलाइज भी कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस को किसी और तरीके से भी कर सकते हो। मेनी पीपल गेम के थ्रू भी करते हैं, गेम्स के थ्रू भी। यू हैव टू जस्ट ट्रेन योर फिजिकल माइंड, दैट्स ऑल। फिजिकल रियलिटी अकॉर्डिंगली फिर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। योर माइंड हैज टू बिलीव इट। जो आपके लिए फियर है, काफी लोगों के लिए फियर नहीं है, क्योंकि उनका फिजिकल माइंड ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि दे कैन डू इट। तो आपको भी सिर्फ आपके फिजिकल माइंड को बिलीव करवाना है, बाय टेकिंग बेबी स्टेप्स, यस यू कैन डू इट। फिर आप कर सकते हैं। तो आप कुछ भी अननोन अपने लाइफ में एक जरूर कीजिए। फियर तो वैसे भी हमारी एनर्जी नहीं है, डर तो कोई भी हमारी ऊर्जा है ही नहीं। अगर किसी भी ये हो जाएगा मेरे साथ, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मुझे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो आप लाइफ का एक बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा एरिया चंक है जिसको आप एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो। और फिर जब आप किसी एरिया को एक्सप्लोर नहीं करते हो, तो फिर उसके बाद में एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है आपकी लाइफ में। हर डर को हटाना है। ऐसा कोई डर रहना ही नहीं है आपकी लाइफ में, क्योंकि डर आपके रास्ते का सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, सबसे बड़ी बाधा है। तो एक एक करके आपको सारे डर हटाने हैं। तो आज से शुरू हो जाइए। रिमूव ऑल योर फियर। अगर आपका फिजिकल माइंड बोलता है नहीं ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो उस डर को बोलो नहीं, सब सही होता है, डोंट वरी, माई सोल इज देयर विद मी। मेरी आत्मा मेरे साथ है, मेरी आत्मा मुझे देख रही है। जब तक मेरी सोल, मेरा अर्थ के ऊपर रहना लिखा हुआ है, मेरी सोल पूरा ध्यान रखती है। टेक कैलकुलेटेड रिस्क। जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको लीजिए। धीरे धीरे आप एक्सप्लोर करते जाइए। मैं ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में ज्यादातर अननोन ही किया है, और उसमें जो मजा आता है, जो बोलते हैं ना किक मिलता है, वो किसी और में होता ही नहीं है। तो आप भी शेयर कर सकते हो अगर आपने इसी तरह का कोई
कुछ ऐसी चीज की है जो आपको पहले नहीं पता था कैसे होता है, एंड ऑल अ सडन यू नो, ओ यस आई डिड इट। आई शेयर वन स्टोरी। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, और एक मेरे को प्रोजेक्ट दिया गया था, और सिर्फ एक फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स थी। वो कोड कैसे काम करता है किसी को नहीं पता है, वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, कोड को रन करना है, वो भी नहीं पता है। वो सॉफ्टवेयर का कोड था, और कहीं ना कहीं मुझे ट्रस्ट था कि यस आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो जिसके बारे में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जिस कोड के बारे में किसी को नहीं पता है, और वहां पर मुझे प्रॉब्लम फिक्स करनी थी, मैंने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। एंड एवरीवन वाज सरप्राइज कि मेरे को उन्होंने बोला कितना टाइम देना है। मुझे भी नहीं पता था मैं कितना टाइम मांगू। तो मैंने उनको बोला ठीक है, वॉट एवर यू फील अप्रोप्रिएट। उन्होंने बोला ठीक है दिनेश, तुम्हें मैं 1 मंथ का टाइम देता हूँ, एंड विल सी इट लेटर, होता है या नहीं होता, क्योंकि एनीवे नो वन इज देयर टू डू इट, सो यू आर द ओनली वन, सो करो। एंड आई वॉज सरप्राइज, और आई सरप्राइज माई सेल्फ। मैं इतना सरप्राइज हुआ कि वो कोड मैंने विद इन 1 वीक रन भी कर लिया। सेकेंड वीक में मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दिया, जो उन्होंने 5 6 बताई थी। इनफैक्ट मैंने उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम बता दिया कि देखो यहाँ भी इशू आएगा, आपको इधर भी आएगा। एंड आई वॉज द मास्टर इन दिस। फिर मुझे बताया गया है कि ओके देन व्हाई डोंट यू हैंडल दिस कोड, और मैंने उसी वक्त नो कर दिया। मैं बोला मुझे एक्सप्लोर करने, अननोन को करने में मुझे मजा आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मेरे को एक एक्सप्लोर करना था जो ऑलरेडी है। फिर उसके बाद मैंने वो किसी और को ट्रांजिशन कर दिया। तो ऐसे जाने कितने स्टोरीज है मेरी लाइफ में, जहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जहाँ पर लोग सोच नहीं पाते थे या मुझे जाना है, और आज वो एक स्टोरी बन गई दैट आई कैन टेल कि क्या कर सकते हो आप। तो आपका भी कोई स्टोरी तो आप शेयर कीजिए कि आपने कहाँ पर ऐसा किया कि लोग बोले कि नहीं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड यू सेड ओके डोंट वरी, और आपने किया, और देन यू हैव द स्टोरी। है किसी के साथ ऐसा कुछ? हेलो सर। यस। हाँ सर, मैं आपको अभी का अपना एक अनुभव बताती हूँ ध्यान का। हम्म। मैं जैसे ही ध्यान में गई सर, मुझे फील हो रहा है कि मेरी चेयर हिल रही है। हम्म। मुझे तो पहले तो मुझे ऐसे लगा क्या है, फिर और अवेयरनेस के साथ देखा सर, ध्यान फोकस किया चेयर के तरफ। फिर से चेयर को हिलाया जा रहा है सर। हम्म। और मैंने क्वेश्चन किया कौन है, कौन ऐसी शरारत शरारत कर रहा है चेयर को हिलाकर। हम्म। तो हंसने की आवाज आ रही है सर। और मैं पूछ रही हूँ कि कौन है, आप लोग बताइए ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो सर बोल रहे हैं कि डर लग रहा है क्या हमसे। तो मैंने बोली नहीं, डर तो मैं हूं ही नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा है। अगर हम आपको पूरा ऊपर ले जाएं तो आप क्या करोगे। कुछ नहीं करूंगी, एंजॉय करूंगी। अगर पूरा नीचे ले जाएं तो क्या करोगे। कुछ नहीं, एंजॉय करूंगी। अच्छा। फिर सर उनके फेस ऐसे थे कि जैसे कि मुंह है पूरा ऐसे सामने की तरफ आया हुआ है, और जो आंखें है वो छोटी है लेकिन जैसे फ्रॉग आइज रहती है ना सर, हम्म। बाहर निकली हुई वैसी आंखें हैं सर। और एक उनमें से छोटा बच्चा आया है सर, दो तो बड़े थे और एक छोटा बच्चा आया है, और एकदम मेरे फेस के सामने आ गया, मुझे देख रहा है। और देखते देखते उसने मेरे थर्ड आई के ऊपर अपनी उंगली को रखा सर। हम्म। और मुझे ऐसे लग रहा है सर कि मैं किसी और दुनिया में जा रही हूँ, कहीं और चली गई हूँ मैं, जहाँ पे अपनी साइकिक पावर बताई जा रही है सर। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, और वो सिर्फ ना थॉट क्रिएट कर रहे हैं सर। बड़ी बड़ी मशीनों के पास जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हो, एक अलग ही दुनिया है। और वो हम्म। सिर्फ थॉट क्रिएट कर रहे हैं और वो चीज हो जा रही है सर। यस, क्रिस्टलाइज कर रहे और हैं। यस। और जी मैं उनसे पूछ रही हूँ ये क्या किया आपने, अब इंस्टेंट। मुझे बताओ। तो वो हंस रहे हैं सर, सबके सब हंस रहे हैं। आपको सीखना है। तो मैंने बोला कि हाँ मुझे सीखना है। सीख कर क्या करोगी। मैंने बोला कि मैं भी
सभी बच्चों को सिखाऊंगी, जो बहुत छोटे बच्चे हैं और जिनका अभी ब्रेन डेवलप हो रहा है, मैं उनको सिखाऊंगी ये चीज कि कैसे साइकिक पावर आपके अंदर क्या है वो जागृत करूंगी। हम्म। तो पहुंच रहे हैं सर, और अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बोल रहे हैं भी आगे आगे चलो। और सर वो मुझे लेकर जा रहे हैं और इतना पीसफुल फील हो रहा है सर कि ऐसा लग रहा है फिजिकल बॉडी है ही नहीं बिल्कुल, सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है सर। और वो मुझे आगे ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको धीरे धीरे इसके बारे में समझाया जाएगा, अभी आप सिर्फ इतना ही जान लो। और ओके। फिर लाकर उन्होंने मुझे अपने चेयर पर फिर से बिठा दिया है सर। तो बड़ा अद्भुत अनुभव है सर आज का। यस। तो फियर टू जी। अननोन। यस, पहले फियर तो था तो। ही नहीं सर, फियर तो कुछ था ही नहीं मुझे। यस, और फिर वो मेरी चेयर वेरी नीचे रखकर चले गए। गुड। तो ये जी सर। ध्यान में ये सब चीजें होगी, क्योंकि कई बार आप जब ध्यान का अनुभव करते हैं ना, कई बार आप ऐसे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हो जो पूरा अननोन है आपके लिए, और आपको पता नहीं होता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ध्यान में जब रहते हैं उस समय, तो ऐसा लगता है आप वहां पे एंट्री कर रहे हैं और वो लोग आपके आसपास हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे फिजिकल वर्ल्ड में जैसे आप देखते हैं ना जब ध्यान के बाहर रहते हैं, तो बिल्कुल वैसा लगता है। तो जब आपका अननोन का फियर निकलने लगता है ना, तो फिर आप एक्सप्लोर करते हो नए दुनिया को, नई तरह से दुनिया को देखते हो। एक अलग तरह का अनुभव आपका शुरू होता है, और आपकी जो चेतना है वो एक्सपेंड होती है, वो उसका विस्तार होना शुरू होता है। और अगर आप फिजिकल माइंड को ये बोलते हैं ना टेस्ट नहीं दोगे नॉन को एक्सप्लोर करने का, वो डर उनके अंदर रहेगा हमेशा के लिए, तो फिर आप कभी भी जहां हो वहीं पे उसी, ऐसे बोलते हैं ना घानी के बेल की तरह, ऐसे पूरी लाइफ को वहीं पे घुमा दोगे आप। कुछ नया नहीं करोगे, जो पेरेंट्स ने बता दिया ऐसा होता है उसी को जिंदगी भर मानते रहोगे। जो आपके बिलीफ्स हैं उनको वैसे ही रखोगे, उनको चेंज नहीं होने दोगे। लेकिन जब आपको लगता है नहीं नहीं मुझे एक्सप्लोर करना है, तो फिर वहां से आपकी असली जर्नी शुरू होती है आपकी। वो तो आपके सिखाई गई है, वो तो किसी और की जर्नी थी जो आप फॉलो कर रहे हो। पर आपकी असली जर्नी जब भी शुरू होती है जब आप अपने लिए अननोन को एक्सप्लोर करना शुरू करते हो। सो ग्रेट, गुड एक्सपीरियंस आपका, पूनम जी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा अपनी लाइफ से जहाँ उन्होंने कुछ अननोन को किया है, बिकॉज सी आप जब शेयर करते हैं ना इट विल मोटिवेट अदर्स कि मिरेकल्स कैसे होते हैं। यस सर। इसीलिए ना अपना छोटा अनुभव भी ना सर शेयर करना चाहिए। यस, इट्स इम्पोर्टेंट। थैंक यू पूनम जी। जी और सर। कोई शेयर करना चाहता है अपना जर्नी का ऐसा अनुभव जहाँ अननोन आपने किया है, जो किसी को नहीं पता था, लोग कह रहे मत करना पता नहीं क्या होगा, और आप बोले नहीं मेरे को तो करना है। मैं जानता हूँ अस्मत जी ने भी बहुत सारी नई चीजें एक्सप्लोर की जो उनके फैमिली में या कभी किसी ने नहीं किया था। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने किया है, और आज आपको लगता है कि यस आई डिड इट, आई एम द वन, आई एम द लीडर हियर। सो फील फ्री टू शेयर। अगर कोई है तो बता दीजिए क्विकली, नहीं तो विल मीट अगेन टुमारो विद न्यू थीम, न्यू एरिया। और सी दैट थिंग इज दैट मेरे टी शर्ट पे भी ये लिखा हुआ है, एक्सप्लोर। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। आई थिंक आज हमें यही एक्सप्लोर करना था अननोन को, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप हमेशा सेफ है, आपकी सोल हमेशा आपके साथ है। और जो होना होता है वो ऑलरेडी आपकी सोल को पता है, आपके लिए अननोन है, आपकी सोल के लिए अननोन नहीं है। सो विद दिस थिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। होप यू like it, and see you tomorrow again if there is no other experience.